وہ اسائنمنٹ جمع کروانے کے چکر میں صبح 7 بجے سے یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ اوپر سے سر اینڈریو سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ اب اس کا دل لائبریری جانے کا نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی پارکنگ لاٹ کی طرف آ گئی، جہاں ڈرائیور اس کا ویٹ کرتا تھا۔ اسے شہریار کی سخت ہدایات تھی۔ گھر آ کر اس نے لباس تبدیل کیا، پھر کچن میں آ گئی۔ صبح سے اس نے ایک کپ چائے کے سوا کچھ بھی حلق میں نہیں انڈیلا تھا۔ وہ کچن میں موجود ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سر میں شدت سے درد ہو رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر اینڈریو کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ اگر وہ واقعی گھر آ گئے تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنا سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ کمزوری الگ غالب آ رہی تھی۔ وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھ کے نیم غنودگی میں ڈوب چکی تھی۔ شہریار گھر میں اپنے مخصوص انداز میں داخل ہوا۔ چابی اور بریف کیس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر سر رکھ کر سوتی ہوئی سویرا پر پڑی۔ وہ خاموشی سے اسے اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد فریش ہو کر آرام کر کے وہ باہر نکلا تو سویرا اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ذرا مینرز نہیں ہے اس لڑکی کو، یہ کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے؟ نان سینس۔ وہ لب بھینچتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سنو لڑکی، اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ لیکن سویرا ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس نے تنگ آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑک سی گئی۔ اب اس کا متورم چہرہ شہریار کی نظروں کے سامنے تھا۔ سرخ ناک اور سوجے ہوئے پپوٹے اس کے رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ صاف ستھرا آنسوؤں سے دھلا پاک چہرہ بہت ہی دلکش اور پرکشش تھا۔ اٹھو، اس نے اسے ہلایا۔ آہ پلیز نہیں، سویرا نیم غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بند پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ چند منٹ شہریار وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا۔ سنو لڑکی، ابھی کے ابھی اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ سویرا جو نیم بے ہوشی میں تھی، اسے شہریار کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ پھر تیز آواز سن کر اس نے بمشکل آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ہی شہریار کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ تم روئی کیوں؟ شہریار نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ شہریار پلٹ کر کچن کیبنٹ کی طرف گیا اور ایک سر درد کی گولی نکالی۔ پھر فریج سے دودھ نکال کر گلاس میں ڈال کر سویرا کی طرف بڑھایا۔ یہ ٹیبلٹ لو اور کچھ کھا پی کر آرام کرو، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے؟ وہ حیرانی سے شہریار کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے پچھلے رویے کو دیکھتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اسے دیکھتے ہی شہریار کا موڈ بگڑ جاتا تھا۔ وہ بس اسے مجبوراً برداشت کر رہا تھا، جس کا اظہار وہ کئی بار برملا کر چکا تھا۔ رخسار کچن میں شام کی چائے کا اہتمام کروا رہی تھی جب فرزانہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھپھو، رخسار نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ پوری حویلی چھان ماری ہے، وہ غصے سے بولی۔ اماں تو دوپہر سے بابا سائیں کو لے کر ہسپتال چیک اپ کروانے گئی ہیں، بس اب آنے والی ہی ہوں گی، رخسار ٹرے میں برتن سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ آ لینے دو آج اسے، میں نے بھی کھل کر بات کرنی ہے۔ میں شاہ بی بی کے پاس جا رہی ہوں، تمہاری ماں آئے تو اسے بھی ادھر ہی بھیج دینا، وہ نخوت سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاہدہ بیگم سلیم صاحب کو لے کر واپس آ چکی تھی۔ رخسار نے انہیں فرزانہ پھپھو کا پیغام دیا۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے شاہ بی بی کے کمرے کی طرف چل دی۔ السلام علیکم، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے اجتماعی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی زاہدہ؟ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ جی بس ابھی ہی آئی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ پہلے سے بہتر ہے اور اس نے آج نسخہ بھی بدلا ہے، وہ تفصیل سے بتاتی ہوئی بولی۔ میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میری تم سے ایسی کیا دشمنی تھی جو تم نے میرے شاہو کو اس چڑیل کے ساتھ ایسا بھیجا کہ وہ پلٹ کر بھی ہمیں یاد نہیں کرتا۔ وہ جب پیدا ہوا تو تم بیمار تھی، ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، ان ہاتھوں سے اس کی پرورش کی، اور بدلے میں کیا ملا؟ اس کی شادی آپ سب نے میرے بھائی کی قاتل سے کروا دی، اور اب وہ لڑکی اسے ہم سب سے دور کر رہی ہے۔ خدا کا خوف کرو فرزانہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سویرا معصوم کا اپنے باپ کی موت سے کیا تعلق؟ آئندہ ایسے ہی بنا سوچے سمجھے مت بولنا، شاہ بی بی نے تنبیہ کی۔ شاہ بی بی، میں کہے دیتی ہوں، اس منحوس سویرا کی چالاکیاں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ میرے شاہو کو بھی کھا جائے گی،
बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं लंदन जा रही हूँ। शर्म करो फरजाना, तुम एक मासूम मजलूम बच्ची पर तोहमत लगा रही हो। मत भूलो वो तुम्हारी सगी भतीजी है। जाहिदा बेगम तड़प कर बोली। मैंने मुंशी मोहम्मद यूसुफ को अपने कागजात दे दिए हैं और अल्लाह ने चाहा तो इस माह के आखिर में मैं विलायत चली जाऊंगी। वो सबको हैरान परेशान छोड़कर कमरे से निकल गईं। सुबह 6 बजे वो सोकर उठा, जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट पहनकर कमरे से बाहर निकला तो सामने ही सवेरा डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल उसी अंदाज में बैठी हुई थी जैसे वो उसे छोड़ कर गया। आर यू मैड? तुम रात भर यहीं बैठी रही हो? वो ठीक ठाक तपा था। सवेरा मुंदी मुंदी आंखों से गायब दमागी से उसे देख रही थी। वो कुछ देर उसकी गायब दमागी को नोट करता रहा। उठो, जाओ जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, उसने ऑर्डर दिया। वो फ्रेश होकर वापस आई तो वो सामने टेबल पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। जल्दी से कॉफ़ी बनाओ, वो स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला। सवेरा खामोशी से किचन में चली गई। उसको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि भयानक रात आकर गुजर चुकी है और वो डॉक्टर एंड्रयू घर तक नहीं पहुंचा। लेकिन क्या कयामत वाकई टल चुकी है? सोचें थी कि आई चली जा रही थी। वो कॉफ़ी मग में उंडेल कर शहरियार के पास आई। लगता है आज तुम्हारा स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं है, वो उसके वीरान से चेहरे पर नज़र डालते हुए बोला। वो बस तुमने शायद कल से कुछ खाया भी नहीं है। लो ये दूध लो और आज घर पर रेस्ट करो। खामखा बीमार हो गई तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। उसने कॉफ़ी का खाली मग उठाया और किचन में चला गया। शहरियार के ऑफिस जाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उसके अंदर बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी जाकर डॉक्टर एंड्रयू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो थके थके अंदाज में बिस्तर पर गिर गई। जिंदगी पहले भी कभी सहल नहीं रही थी, लेकिन पहले उसको हौसला देने के लिए शाह बीबी और रुखसार थी, जो बड़े प्यार से उसे समझाया करती थी, उसकी ढाल बना करती थी। रुखसार आपी, वो सिसक उठी, उसकी आंखें भीग रही थी। डॉक्टर बनना और आला तालीम हासिल करना उसका ख्वाब था जिसे शहरियार पूरा कर रहा था। लेकिन डॉक्टर एंड्रयू का यूं उसकी राह में आना, ज़बरदस्ती हक जताना, उस नाजुक से दिल की मालिक लड़की को डरा रहा था। अल्लाह जी मेरी मदद करें, मुझे इस मुश्किल से निकाल दें। वो रोते रोते पता नहीं कब सो गई थी और न जाने कितनी देर सोती रही थी, जब उसकी आंख मुसलसल मेन डोर की लगातार बेल बजने से खुली। मुसलसल बेल बजने की आवाज़ सुनकर वो उठ बैठी, दुपट्टे को दरुस्त करती दरवाजे पर आई। की होल से देखा तो सर पर सन ग्लासेस लगाए ऐना खड़ी थी। उसने फौरी दरवाज़ा खोला। कैसी हो सवेरा? ऐना ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के क्लिनिक चलना है। वो आराम से सोफे पर बैठते हुए बोली। डॉक्टर? मगर क्यों? माय स्वीट फ्रेंड, मुझे बॉस ने भेजा है कि तुम्हारा चेकअप करवाना है, इसलिए कोई अगर मगर नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। हरी अप गर्ल, ऐना ने जल्दी मचाई। पर मुझे कुछ नहीं हुआ, सच्ची मैं ठीक हूँ। तुम ठीक होगी, पर बॉस ठीक नहीं है। मेरे सारे काम ऑफ करवा के मुझे इधर भेजा है ताकि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूँ। उन्हें बहुत फिक्र है तुम्हारी। ऐना शरारत से बोली तो वह इस बात में सर हिलाती कमरे में आई। हाँ, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरा सबसे मजबूत रिश्ता तो मेरे साथ है, मुझे उनको सब बता देना चाहिए। वो तैयार होते हुए सोच रही थी। सुबह के वक्त 1 घंटा जॉगिंग करना उसकी पुरानी आदत थी। इसके बाद पूरा दिन तो ऑफिस बिजनेस मीटिंग्स में ही गुजर जाता था। आज भी वो मामूल के मुताबिक जॉगिंग करने निकल ही रहा था जब उसकी नज़र मेज़ पर सर रखकर बैठी हुई सवेरा पर पड़ी थी। अपने इर्द गिर्द से बेनियाज, चेहरे पर अजीब सा डर और खौफ लिए वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई थी। उसने ज़बरदस्ती उसे उठाकर मुंह हाथ धोने भेजा। उसके बाद वो चाहते हुए भी बाहर नहीं जा सका। वो उसे दोबारा देखना चाह रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो धुले मुंह के साथ सर पर दुपट्टा ओढ़े बाहर आई। उसका अंदाज हरगिज़ भी नॉर्मल नहीं था। उसने ज़बरदस्ती उसे दूध का ग्लास दिया और स्कूल से छुट्टी का ऑर्डर देकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में काम करते हुए भी उसे सवेरा का ख्याल आ रहा था। उसका दिल चाहा कि उसे फ़ोन करके तबीयत पूछे, मगर फ़ोन तो वो सवेरा को देना ही भूल गया था। तंग आकर उसने अपनी सेक्रेटरी ऐना को इंटरकॉम किया और उसे घर जाकर सवेरा को डॉक्टर के पास ले जाने की सख्त हिदायत दी। अभी वो अपने काम में मसरूफ़ था जब जोन्स ने उसे कॉल करके लंच ज्वाइन करने को कहा था। वो सारे काम समेट कर कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकला।
जॉन्स ने टर्किश पार्टनर्स को लंच पर इनवाइट किया था और शहरियार को वक्त पर पहुंचने की आदत थी। रेस्टोरेंट के दरबार को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए वो तेज तेज कदमों से चलते हुए बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। उसने मुतलाशी निगाहों से चारों जानिब देखा तो सामने ही सफ़ेद शर्ट पर टाई लगाए, ब्लैक पैंट में जॉन्स आस्तीनें फोल्ड किए हुए दो 30 से 35 साल के आदमियों से बातें करता नजर आया। उनके साथ एक उधेड़ उम्र तुर्क खातून भी थी। वो इत्मीनान से अपना कोट उतार कर हाथ में लेते हुए उनकी जानिब बढ़ा। सॉरी जेंटलमैन, मैं थोड़ा लेट हो गया, वो खुशदिली से मुस्कुराते हुए बोला। जॉन्स ने उसे घूरते हुए उसका तारुफ उन दोनों मर्द हजरात और उन खातून से करवाया। इसके बाद एक पुरतकल्लुफ लंच का ऑर्डर करके वो सब आपस में बातों में मसरूफ हो गए। लंच सर्व हो चुका था, तभी अचानक वो खातून अपने बेटों से मुखातिब हुई। कितनी प्यारी लड़की है। प्यारी नहीं माँ, बहुत खूबसूरत है, वो सामने बड़े गौर से उस लड़की को देखते हुए कह रहा था। शहरियार और जॉन्स ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। कोने वाली मेज़ पर ऐना और सवेरा बैठी बातें कर रही थी। ऐना उसे डॉक्टर को दिखा चुकी थी, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने उसे ज़हनी दबाव का शिकार बताया था और खुश रहने और स्ट्रेस फ्री रहने की तलकीन की। सवेरा, आखिर तुम्हें क्या टेंशन है? इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, अपनी मनपसंद तालीम हासिल कर रही हो, फिर क्या सोचती रहती हो जो ये हालत बना ली है? ऐना ने उसे झाड़ा। सारे रास्ते वो उसे समझाती बुझाती हुई एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आई। चलो उतरो, आज मैं तुम्हें ज़बरदस्त सा लंच करवाती हूँ। ऐना ने गाड़ी पार्क की। सॉरी ऐना, मगर मैं ऐसे लंच नहीं कर सकती, सवेरा हिचकिचाई। डोंट वरी, इधर का फूड हलाल होता है, शहरियार सर इधर ही आते हैं, इसलिए मुझे पता है। ऐना ने उसकी हिचकिचाहट समझ कर कहा, ठीक है, पर बिल मैं दूंगी। सवेरा ने जल्दी से कहा, आज तुम मेरी मेहमान हो, नेक्स्ट टाइम तुम दे देना, अब चलो। ऐना ने उसका बैग छीनकर पीछे की सीट पर डाला और दोनों अंदर दाखिल हुई। अंदर का माहौल बहुत ख्वाबनाक सा था। हल्का हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। चारों जानिब बड़े बड़े पाम के गमले रखे थे। ऐना ने कोने पर एक मेज़ मुंतखब की और सवेरा के साथ बैठ गई। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिलैक्स यार, ऐना ने उसे हाथ मसलते हुए देख कर टोका। अब सवेरा उसे कैसे बताती कि ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था कि वो किसी रेस्टोरेंट में आई थी, वरना उसे तो हमेशा घर में छोड़ दिया जाता था। तभी एक बावर्दी वेट्रेस मेन्यू कार्ड लेकर आई। चलो भी, जो दिल चाहे ऑर्डर करो, ऐना ने खुशदिली से कहा। वो दोनों अपना अपना ऑर्डर लिखवाकर अब रिलैक्स होकर बैठ गई थी। ऐना, मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी इस सिलसिले में मदद कर सकती हो? सवेरा ने सवाल किया। जॉब? आर यू सीरियस? ऐना ने हैरानगी से उसे देखा। मैं बहुत सीरियस हूँ, सवेरा ने जल्दी से कहा। मगर सवेरा हनी, तुम मेडिकल की टफ पढ़ाई के साथ जॉब कैसे मैनेज करोगी? मैं कर लूँगी, कोई इवनिंग या वीकेंड की जॉब मिल जाए, प्लीज़ मेरी मदद करो। मदद? कैसी मदद डियर? तुम्हारे तो कज़न का इतना बड़ा बिजनेस है, तुम वो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती हो? बॉस से बोलो कि घर की बात है, वो टाइमिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। ऐना ने मशवरा दिया। नहीं ऐना, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। ठीक है, मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कोई ख़ास नहीं है और ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है। वैसे भी स्टूडेंट्स तो छोटी मोटी जॉब ही करते हैं। ऐसा करो, तुम अपना रिज्यूमे बना लो और नेक्स्ट वीक तुम्हें यूनिवर्सिटी से मैं पिक कर लूँगी, फिर मॉल में और कॉफ़ी शॉप्स में अप्लाई करते हैं। ऐना ने उसे तसल्ली दी। वैसे तुम्हारा जॉब करने का फ़ैसला बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ खुद को ग्रूम भी किया करो, मेक ओवर करवाओ, अपनी पर्सनालिटी बनाओ, बोल्ड बनो। ऐना ने उसे सराहा। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थीं जब किसी के खंकारने की आवाज़ पर वो दोनों चौंक गईं। मिस ऐना, आप इधर क्या कर रही हैं? जॉन सर पर खड़ा पूछ रहा था। गुड आफ्टरनून सर, मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर आई हूँ, ऐना उसे सलाम करते हुए जवाब दी। ऐना ने उसे सलाम करते हुए जवाब दिया। आपकी फ्रेंड सिस्टर सवेरा? उसने हैरत से पूछा। जी सर। वो जुज़बुज़ सी हो गई। सवेरा, तुम कैसी हो? अब जॉन सवेरा को देख रहा था। इससे पहले कि सवेरा जवाब देती, जॉन्स का फ़ोन बज उठा। तुम उधर जाकर चिपक ही गए हो, यहाँ गेस्ट वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, शहरियार की सर्द आवाज़ गूंजी। आप दोनों ख़वातीन हमें लंच पर ज्वाइन करें। जॉन्स ने अपनी मेज़ की तरफ इशारा किया। सवेरा ने शहरियार को देखा तो एक सर्द सी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। पर सर, हम ऑर्डर कर चुके हैं, ऐना ने सवेरा की घबराहट को भांपते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो उधर सर्व हो जाएगा, हरी अप गर्ल्स। जॉन्स ने उन्हें उठने का इशारा किया।
वो दोनों उठकर जॉन्स के हमराही मेज पर आए। जेंटलमैन एंड मैडम, मीट माई सिस्टर सवेरा एंड सेक्रेटरी मिस एना। जॉन्स ने शहरियार को खामोश देकर खुद तारुफ करवाया। सवेरा खासा झिझक रही थी। उस पर उन मेहमानों की पुरशौक निगाहें उसी पर जमी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बहन है तुम्हारी और मासूम भी है। मादाम ने सवेरा को सराहती हुई नज़रों से देखा। मिस सवेरा, क्या आप हमारी ज्वेलरी की ऐड में मॉडलिंग करना चाहेंगी? मुआवजा मुंह मांगा दूंगा, उनमें से एक ने पूछा। सॉरी, ये मॉडलिंग नहीं कर सकती, शहरियार ने सख्ती से जबड़े भींचते हुए कहा। जॉन्स, तुम मेहमानों की खातिर तवाज़ो करो। सॉरी गाइस, मुझे इजाज़त दें। वो खड़ा हो गया। तुम्हें क्या दावतनामा देना होगा? वो उर्दू में सवेरा को देखते हुए घुर्राया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। मिस, आप तो रुकें। उसने उसे रोकना चाहा। ये मेरे साथ हैं, शहरियार ने सर्द लहजे में कहा और सवेरा का हाथ थामकर तेज़ी से बाहर निकल गया। उसे बाहर आते देखकर दरबान तेज़ी से उसकी गाड़ी लाने के लिए गया। उसके चेहरे पर सर्द मोहरी थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सवेरा को अंदर धकेला, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। वो लब भींचते हुए अपना गुस्सा जब्त करते हुए ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर एंड्रयू अपनी क्लास से अब फारिग हुआ। अब उसका इरादा सवेरा से मिलने का था, मगर उसे पूरे डिपार्टमेंट में कहीं सवेरा नहीं मिली। रात भी सवेरा ने उसे घर आने से मना कर दिया था और अब खुद भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। हो सकता है उसके हस्बैंड ने उसे रोका हो। वैसे भी ये एशियन मर्द खुद जो चाहे मर्जी करते रहें, लेकिन अपनी औरतों को पाबंदियों में जकड़ कर रखते हैं। वो सोच रहा था। कुछ देर बाद उसने फ़ोन निकाला। इरादा सवेरा को कॉल करने का था। हालांकि सवेरा ने उसे कॉल करने से मना किया था, पर उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो उसे देखना चाहता था, सुनना चाहता था। कुछ सोचकर उसने सवेरा को मैसेंजर पर मैसेज टाइप किया। किधर हो तुम? कॉल करो, वरना मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उर्वा की अभी सुबह नहीं हुई थी। आज कोई ख़ास प्लान नहीं हुआ था। अभी भी दिन के 2 बज रहे थे जब उसके फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई। बड़ी ही नागवारी से उसने फ़ोन उठाया और मैसेज देकर अच्छी पड़ी उसकी सारी सुस्ती हवा हो गई थी। उसने जल्दी से मैसेंजर से एंड्रयू को कॉल मिलाई। हेलो सवेरा, किधर हो तुम? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? पहली बेल पर ही एंड्रयू फ़ोन रिसीव करते ही शुरू हो गया था। एक लम्हे को तो उर्वा को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। फिर वो संभल कर बोलना शुरू हुई। वो मैं रात में देर से सोई थी तो सुबह आँख ही नहीं खुली। पार्टी तो तुमने कैंसिल कर दी थी, फिर देर से क्यों सोई? वो आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली। नहीं कहूँगा। एंड्रयू को उसकी हिचकिचाहट पर टूट कर प्यार आया था। वो मैं आपको सोच रही थी। मुझे लगा कि आप मेरे इनकार पर नाराज़ ना हो गए हो। बस आपकी नाराज़गी का सोच कर नींद उड़ गई। वो बड़े मज़े से एंड्रयू को शीशे में उतार रही थी, उसे आहिस्ता आहिस्ता दीवानगी की राह पर ला रही थी। लंच से बड़े ख़राब मूड के साथ वो सवेरा को घर वापस ले आया। आइंदा इस तरह तुम मुझे अकेली होटलिंग करते नज़र आई ना, तो टांगें तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूंगा। हमारे घर की औरतें इस तरह बाहर नहीं निकलती हैं। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। अब सर झुकाए क्यों खड़ी हो? जाओ शक्ल गुम करो अपनी। वो उसे चुपचाप खड़ा देखकर तप गया। सवेरा बुझे हुए अंदाज में अपने कमरे की जानिब चली गई। शहरियार ने किचन में आकर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर अपने मुंह से लगाई। उसकी निगाहों में बार बार उस आदमी की पुरशौक निगाहें जो सवेरा को देखती हुई नजर आ रही थी, घूम रही थी। मॉडलिंग करवाएगा, कल सुबह सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाता हूँ। वो बुड़बुड़ाया और अपने कमरे में आकर अब सिगरेट सुलगा चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। शायद ये मेरे चाचू की बेटी है, मेरे ख़ानदान की इज्जत, इसलिए ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा था। बेहतर है मैं इसे पहली फुर्सत में हॉस्टल में शिफ्ट कर दूं, वरना ये लड़की मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। वो ये जहन में सोच आते ही रिलैक्स हो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख फ़ोन की बेल से खुली। शाह बीबी की कॉल थी। शाहू, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी सवेरा से बात करा दो। शाह बीबी ने सलाम का जवाब देते हुए हुक्म दिया। वो उन्हें होल्ड करवा कर उठा और सवेरा के कमरे में आया। सुनो लड़की, उठो, शाह बीबी से बात करो। उसने दरवाज़ा खोलकर आवाज़ लगाई। कोई जवाब ना पाकर वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की लाइट जलाई। सामने ही बिस्तर पर सवेरा आड़ी तिरछी कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। वो करीब आया। सुनो लड़की, उठो। अब के उसने तशवीश से उसे देखा। उसका चेहरा सुर्ख अनार हो रहा था।
लंबी घनी चोटी बिस्तर से नीचे लटक रही थी और सांस भी मध्यम थी। शाह बीबी, इधर अभी रात के 2 बज रहे हैं, आपकी चहीती सो रही है, मैं आपकी सुबह बात करवाता हूँ। शाह बीबी को खुदा हाफिज कहकर फ़ोन रखने के बाद वो सोई हुई सवेरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। ए लड़की, उसने उसका हाथ पकड़ा और चौंक गया। उसे तो बुखार हो रहा था। वो किचन में गया, कैबिनेट से बुखार की गोली और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर दोबारा कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा को रात गए तक शदीद बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो नकाहत महसूस कर रही थी, प्यास से हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन किचन में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे शिद्दत से पाकिस्तान याद आ रहा था, शाह बीबी, रुखसार आपी याद आ रही थी, अपने बाबा याद आ रहे थे। जब वो छोटी सी थी तो किस तरह उसके छींक मारने पर भी डॉक्टर्स की लाइन लगा दिया करते थे। फिर बाबा के बाद उनकी शहजादी रुल गई, मगर फिर भी बीमारी में शाह बीबी उस पर दम किया करती थी, उसका ख्याल रखा करती थी। वो सब सोचते हुए न जाने कब गनूदगी में चली गई। सवेरा का माथा तप रहा था, बुखार की शिद्दत से उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। जब शहरियार ने सख्ती से होंठ भींचते हुए उसे पुकारा, आंखें खोलो और ये दवा लो, वो टस से मस नहीं हुई। शहरियार ने पुरतशवीश नज़रों से उसे देखा, फिर कमरे में मौजूद अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ा, अंदर से तौलिया गीला करके बाहर लाया, सवेरा के पास बैठकर उसके ऊपर से लिहाफ उठाया, फिर उसके माथे और हाथों की हथेलियों पर गीला तौलिया फिरने लगा। थोड़े थोड़े वक्फे से वो तौलिया गीला करके लाता और फिर यही अमल दोहराता। कुछ देर बाद सवेरा ने एक आह भरते हुए अपनी आंखें खोली तो शहरियार को खुद पर झुका पाकर घबरा गए। उठो और ये दवा लो, शहरियार ने उसे आंखें खोलते देख कर कहा। सवेरा बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उठी और खामोशी से शहरियार के हाथ से टैबलेट लेकर मुंह में रखी। उसके हाथ पांव बिल्कुल बेजान हो रहे थे, पानी की बोतल उसके हाथ में कपकपा रही थी। क्या बात है? शहरियार ने उसे घूरा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो अपनी कनपटियों को दबाते हुए बोली। एक लम्हे को शहरियार के चेहरे पर हमदर्दी के तासुरात उभरे। तुम लेट जाओ, देखना अभी थोड़ी देर में दवा असर करेगी, वो नर्म लहजे में बोला। तुमने यकीनन सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए वीकनेस हो रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। सुबह हस्बे मामूल उसकी आंख खुली। जॉगिंग से फारिग होकर वो किचन में आया तो इतने दिनों में पहली बार उसके लिए फ्रेश जूस मेज़ पर नहीं था। वो सर झटकते हुए अपने कमरे में गया, ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर निकला। बाहर एक सवेरा के ना होने से एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। वो पहले उसके कमरे में आया, वो अभी भी सो रही थी। उसने उसकी पेशानी पर हाथ रखा, माथा अभी भी गर्म था। ज़बरदस्ती उसे उठाकर एक गोली मजीद दी। क्या स्कूल जाओगी या मैं इधर फ़ोन कर दूं? मुझे नंबर दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कहीं नहीं जा सकती। सवेरा ने उस खड़ूस को देखा। ठीक है, एज़ यू विश। वो कंधे उचकाते हुए बाहर निकल गया।